Hello students, welcome back to my channel. Here I am going to discuss important questions on the transportation in human beings while the circulatory system. Your first question is here, what describe double circulation of blood in human beings and why is it necessary? See, as you know already, blood they has to pass twice through the heart so as to circulate once through the body. First, it is known as first cycle pulmonary circulation. Pulmonary circulation means circulation of blood from heart to lungs and from lungs back to heart. Lungs, so it is called pulmonary. Circulation of deoxygenated blood from the right ventricle to the left auricle through lungs, it is called pulmonary circulation. And second part, systemic circulation, that is circulation of oxygenated blood from the left ventricle to the right auricle through various body parts or systems, it is called circulatory system. So it is necessary because blood is oxygenated in lungs, that is in pulmonary circulation, and it is oxygenated blood has to be distributed throughout the body, then only one complete circulation occurs. So this is called double circulation. And why it is necessary? It is necessary because oxygenated blood from the lungs, it has to be distributed equally to each and every part of your body, right? Your next question, what are the components of the transport system in human beings and what are the functions of these components? Now here I see the components of the transport system in the human beings. They are heart, which pumps the blood fluid which flows in the blood vessels, they are the thin पाइप लाइक जो पाइप की तरह पतली पतली जो वेन्स आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ये आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज होती हैं. और लिम्फ एक फ्लूइड जो कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर करता है, तो इसमें वापस पूरा नहीं आ पाता, कुछ सेल्स और टिश्यूज में टिश्यू फ्लूइड के थ्रू हो जाता. ये टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ में अनेक लिम्फ वेसल्स में कलेक्ट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, और ये वापस, क्योंकि अगर इस तरह से ब्लड कम होता जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो प्रॉपर फंक्शन नहीं बॉडी के हो पाएंगे. इसलिए उसको कलेक्ट करने के लिए अनदर सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल्स, उसमें लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ बॉडी टिश्यू से कलेक्ट होकर लिम्फ वेसल्स में जाता है, लिम्फ हार्ट्स में जाता है, और लिम्फ हार्ट्स इसको वापस इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वेन में ब्लड को पोर करते हैं. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? ये तो आपके कंपोनेंट्स हो गए. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? योर कंपोनेंट्स हार्ट, ब्लड वेसल्स, arteries, veins and capillaries, lymph. Now what are the functions? Let us discuss. See, heart, it pumps the blood throughout the body through double circulation. जैसे हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट में वन साइकिल, फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में गया. So that is the heart is the main function to pump the blood to the different parts of the body. Now the next component, blood. Blood क्या आता है? It transport digested food material from blood to the different parts of the body. It transport oxygen and carbon dioxide. लंग से ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ले जाता है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके वापस लंग्स में ले आता है, जिसे हम रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज बनता है, ये यूरिन बनता है, मिनरल एलिमेंट जो एक्सेस जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से एब्जॉर्ब करता है और किडनी में ले जा करके उसको फिल्टर करता है. ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारे वेरियस सिस्टम्स को सही तरह से बॉडी फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, तो हार्मोन्स जो होते हैं जहाँ यूज़ होते हैं वहाँ नहीं सिक्रेट होते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट, तो ब्लड जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ उसको ले जाता है. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट को ट्रांसफर करें सो दैट इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम कर पाएंगे. होमियोस्टेट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट. अगर हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए देखिए, जब भी फीवर होता है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको दवा देता है फर्स्ट टेम्परेचर डाउन, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो बॉडी सिस्टम सारे फेल हो जाएंगे, एंजाइम सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप बच नहीं सकते.
पहले टेम्परेचर डाउन करो जिससे कि सारे सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली करते रहें। तो ये एक बॉडी में अंदर अंदर भी ऐसा सिस्टम मेंटेनेंस होता है जिससे कि उसको एनवायरनमेंट, जैसे कहीं टेम्परेचर बढ़ा तो तुरंत पसीना आता है, बॉडी से निकलता है। तो पसीना क्यों निकलता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना आता है। वी स्वेट अवर बॉडी टू मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, दे आर द आर्टरीज. Arteries, they are distributory in function. They distribute oxygenated blood except lungs to the various parts of the body, parts from heart to the different parts of the body except lungs. Veins, they are collecting one function. They collect deoxygenated blood from all body parts except lungs to the heart. क्योंकि lungs में blood oxygenate होता है. Capillaries, they are the thin wall of capillaries. They help in exchanging the various materials between the blood and tissues through the wall of capillary. So capillaries के function क्या होते हैं? कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्लड को आपस में जो ट्रांसफ्यूज डिफ्यूज हो करके, जैसे आप ये देखिए, ये आपकी बॉडी में है, ये कैपिलरीज है, लंग्स है, ये आपका आर्टरी है, ये वेन है। तो ये कैपिलरीज सेल्स टिश्यूज में एम्बेडेड होती हैं। जब सेल्स और टिश्यूज में डिफरेंट ऑर्गन्स में ये एम्बेडेड होती हैं तब वहाँ पर इनके वेरियस फंक्शंस होते हैं। जैसे कैपिलरीज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज, ब्लड से ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड diffuses from the body tissues to the blood. Nutrients, they diffuse from blood to the body tissues. And metabolic waste from the tissues, they comes to the blood for elimination. किडनी में जाके फिल्टर होते हैं। ल्यूकोसाइट, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट WBC, दे स्क्वीज थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज सो दैट दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। अब लिम्फ को लिम्फ कहिए या टिश्यू फ्लड कहिए या बॉडी, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। लिम्फ जो होता है हमारी कैपिलरी से जब प्लाज्मा फिल्टर होता है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, तो उसमें जितना फिल्टर होता है पूरा बस में वापस नहीं आता, कुछ सेल्स और टिश्यूज में रहता है जिससे कि सेल्स और टिश्यूज बात रहते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और जो ल्यूकोसाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं दे एस्केप, वो वहाँ से वापस इंट्रासेलुलर स्पेसेस में जाते हैं। सेल्स एंड टिश्यूज आर बाथ इन देम। फिर यहाँ ये क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंटेस्टाइन से, इसको ड्रेन करके सेल्स और टिश्यूज में लाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो फ्लूइड होता है। अब उस फ्लूइड को कर करने के लिए लिम्फ वेसल्स में कलेक्ट होता है और लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ हार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू वापस ये एंटीरियर एब्डोमिनल वेन में जाकर के ब्लड के वॉल्यूम को बराबर करता है। नहीं तो ब्लड का वॉल्यूम अगर उसमें हो जाता है तो बॉडी हमारे फ्लूइड, देखिए जैसे ही एज बढ़ती तो देखिए बॉडी पार्ट्स ऑर्गन जो है ढीले पड़ते हैं। वो ढीले क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो फ्लूइड लिम्फ होता है वो बॉडी सेल्स वापस उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जो आपके दादी बाबा होंगे तो आप देखेंगे जैसे हाथ हैं तो स्किन ढीली लूज पड़ जाती है, यंग स्टेज में टाइट होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो लूज होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एज के सेल्स के साथ वीक पड़ते हैं तो ये प्रोसेस धीमा पड़ता जाता है। राइट। Now your last question here, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? The separation of right side and the left side of the heart, it is very useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. चूँकि पूरा सेप्टम से राइट और लेफ्ट साइड टोटल सेपरेटेड होते हैं इसलिए राइट साइड का ब्लड लेफ्ट में नहीं आता है, लेफ्ट का राइट में नहीं आ जाता है। It is very useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation, it allows highly efficient supply of oxygen to the body. चूँकि ये मिक्स नहीं होता है तभी एरोटिक ट्रंक के जरिए जो बॉडी पार्ट्स में हम ऑक्सीजन को सप्लाई, ऑक्सीजन डाइजेस्टेड एलिमिनेटेड वेस्ट सब चीज़ जो है वो सप्लाई दे। एंड दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू बी सेपरेट ऑक्सीजन डाइऑक्साइड ब्लड इन मैमल्स एंड सो दैट प्रॉपर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड फैट, proteins, enzymes, hormones, oxygen, carbon dioxide can take place in the body
tissues, because the body functions are there, they are most peculiar, then it becomes very easy. Thank you. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with the next topic of your life process.